Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about the direct gene transfer methods and particularly in the plants. In the series of the plant biotechnology or in the recombinant DNA technology, we have studied about the gene cloning. Basically in the gene cloning, we took a gene and cloned that gene by inserting it into a cloning vector. After insertion of this gene into the cloning vector, there becomes a molecule RDM, recombinant DNA molecule. जब भी फॉरेन जीन को क्लोनिंग वेक्टर में डाल दिया जाता है उसके बाद RDM बनता है और RDM को होस्ट के अंदर डाला जाता है. In the host, this particular gene can be cloned, which will be called gene cloning. Or if we express this gene by inserting it into expression vector and then into host, it will shows its character into the host. So basically gene cloning में cloning vector mediated gene transfer भी होता था, जिसके बारे में हमने पढ़े. हमने different cloning vectors पढ़े like plasmids, bacteriophages. प्लांट में भी हमने एक स्ट्रेटेजी पढ़ी that was the agrobacterium mediated gene transfer, जिसमें इस पर्टिकुलर जीन को टीआई प्लाज्मिड में डालकर, यानी वहां भी क्लोनिंग वेक्टर यूज किया गया था, that was the agrobacterium's टीआई प्लाज्मिड. So basically vector mediated gene transfer common होते हैं, which we have studied in the previous videos. If you have not seen, you can watch in the concerned playlist, that is the plant biotechnology. उस playlist में आप देख सकते हो. यहाँ बेसिकली हम ऐसे जीन ट्रांसफर मेथड पढ़ेंगे जो नॉन वेक्टर मीडिएटेड है, वेयर देयर इज नो वेक्टर रिक्वायर्ड, नो एनी काइंड ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर एंड नो एनी काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन वेक्टर. सो बेसिकली एनी ऑफ द जीन और द डीएनए फ्रेगमेंट will be inserted directly into the target cell, or which we say the host cell. So without using any vector, non-vector mediated gene transfer, we will insert this gene into the cell. Although among vector mediated as well as the non-vector mediated gene transfer, the vector mediated gene transfers are common because they are natural and they are target specific. नेचुरली काम होता है, जैसे वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं तो अपने आप उस डीएनए को, अपने जीनोम को वायरस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं. सो स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है इन्फेक्शन की और सक्सेस रेट जो होता है वो वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर का ज्यादा है. यहाँ पर सक्सेस रेट कम है एज कंपेयर टू वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, बट सर्टेन स्ट्रेटजीज आर देयर व्हिच कैन बी यूज्ड in the plants as well as the animals, although many of them are common, but still there are specific strategies for animals as well as plants. So in this portion, that is the plant biotechnology, we will mainly discuss about the direct gene transfer methods in the plants. Although the methods like microinjection, gene gun, liposome, PEG mediation, electroporation, these are common altogether also in the animals. So let's just discuss them one by one. So these are some methods which are the methods of direct gene transfer. सभी मेथड्स में जीन या डीएनए को उठाया जाएगा और इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली सेल के अंदर, एग्जैक्टली टारगेट लोकेशन पे, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर या कहीं भी साइटोप्लाज्म तक भी जीन को इंसर्ट किया जाता है. सो वन इज इलेक्ट्रोपोरेशन यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर इज द माइक्रो इंजेक्शन. Similarly, like an injection is carrying any vaccine or any dose or any chemical or any drug that will be inserted into the body or muscles. So similarly, DNA will be inserted into an injection and it will be pushed inside or it will be inserted inside the cell. In the gene gun, like a gun mechanism, we load the bullet in the gun. Here we load the DNA into the gun and we will fire it into the cell. In the liposome encapsulation, a special kind of the lipid particles which are called the liposome. Lipid nature particles loaded with the DNA are attached to the plant cell and that will release the DNA inside the cell. In the PEG mediated gene transfer, it is a chemical method. All of the above methods were physical. This is a chemical mediated which is called polyethylene glycol, PEG, polyethylene glycol. This particular chemical helps the cell membrane to get ruptured from the several places or to create pores in the cell membrane through which the gene will be transferred or that will be transferred inside the cell. So let us discuss these all methods one by one. We should keep remember the names: electroporation, microinjection, gene gun, and liposome encapsulation. The chemical method is PEG mediated. Polyethylene glycol is chemical which creates the pore and the DNA will be inserted. So they all are the direct gene transfer methods. So electroporation is a physical technique for the gene transfer where we use the electric pulses or the electric current. इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली यूज किया जाता है डीएनए को डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए.
So what we take a solution in which we have taken a cell, the target cell. The solution is filled with the enough amount of the DNA sequences, like these are the DNA sequences. The concentration of the DNA sequences should be high, as well as the electric current should be keep around 1.5 kilovolt. The electric current or the electroporation, electric pulses should be such high that they can create the pores inside of the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर सकें, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लिया जाता है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में या पल्सेस के बीच में सॉल्यूशन में डीएनएज लिए जाते हैं जिनको लोड करना है, ठीक है, या जिनको डायरेक्टली ट्रांसफर करना है टारगेट सेल में. यहाँ जो प्लांट सेल ली जाती है वो प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में ली जाती है. नाउ व्हाट इज दिस प्रोटोप्लास्ट? अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल is called protoplast. The difference between a protoplast and cell wall and plant cell is the basic difference, that is of cell wall. A plant cell without cell wall is called protoplast. Plant tissue culture में ये word हम पढ़ेंगे in the upcoming videos or the upcoming lectures. I will discuss about the plant tissue culture. So वहाँ आता है protoplast. ये basically use किया जाता है क्योंकि cell wall जो होती है वो impermeable बनाती है DNA के लिए. Cell wall is rigid, उसको electric field से इतना फर्क नहीं पड़ेगा. That will make impermeable द प्लांट सेल फॉर द डीएनए. तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में सेल को लिया जाता है, बाद में प्रोटोप्लास्ट का रीजनरेशन करके सेल वॉल बना ली जाती है. बट while the time taking we are taking the DNA or the DNA is being transferred, the plant cell is taken in the form of protoplast. तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट को प्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रिक पल्सेस या इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो है पोर्स क्रिएट होते हैं, ट्रांजिएंट माइक्रोपोर्स यहाँ क्रिएट होते हैं. टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है. इंट्रांजिएंट जो स्पोर्स हैं या आपके स्पोर्स हैं, इनके थ्रू होल्स के थ्रू ये डीएनए इंसर्ट हो जाता है अंदर और अंदर डीएनए पहुंच जाएगा. तो इनफ अमाउंट में बाहर डीएनए था तो कंसंट्रेशन जो है या प्रोबेबिलिटी है ज्यादा अंदर जाने की. उसके बाद इंसर्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्मल कर दिया जाता है और सेल के अंदर जीन का ट्रांसफर हो जाता है. सो बेसिकली दिस टेक्निक इज सिंपल, रैपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव. बट यहाँ कुछ जो है इसके जो है एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा इसको यूज किया नहीं जाता, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर ज्यादा यूज किए जाते हैं. तो इसके कॉन्स जो है वो ये है कि एक तो यहाँ पर जब टारगेट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है, खुद सेल भी डैमेज हो सकती है. सो एक प्रॉपर करंट जो है वो मैनेज किया जाता है. कम करंट देंगे तो पोर्स नहीं होंगे, ज्यादा करंट दे दिया तो डैमेजिंग भी हो सकती है. टारगेट स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं है ये. Okay, so there are pros as well as the cons also. So electroporation is a physical technique in which directly the gene or the DNA can be inserted with the use of electric pulses or the electric current by creating the pores in the cell membrane. Through those pores the DNA will be transferred inside the cell. So another important physical gene transfer method in the plants as well as the animals also is the gene gun. This is a modern approach. आजकल जीन गन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. इट इज वेरी सक्सेसिव आल्सो बिकॉज इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी काइंड ऑफ द जीनोटाइप और द फिनोटाइप, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लांट में ही काम नहीं करते, हर एक प्लांट में ये काम कर सकते हैं. जैसे एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर या वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. हर एक प्लांट के लिए अलग अलग वेक्टर यूज किए जाते हैं. बट यहाँ पर जो है जीन गन, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनी काइंड ऑफ जीनोटाइप और एनी काइंड ऑफ द डिवीजन क्लास एनीथिंग. तो ज्यादातर में यूज किया जा सकता है प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में. जीन गन को पार्टिकल बम्बार्डमेंट या बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं. इसके बहुत सारे नाम है. बायोब्लास्टर भी कहते हैं. देयर इज नो काइंड ऑफ ब्लास्ट ऑल्दो इन दिस, बट स्टिल देयर इज अ काइंड ऑफ फायर मैकेनिज्म जैसा गन में होता है. तो एक्चुअली आजकल तो मॉडर्न जीन गन जो है वो बाहर से बिल्कुल गन के जैसे ही दिखते हैं. पहले मैकेनिकल जीन गन होते थे जिनका साइज बड़ा होता था. नाउअडेज द जीन गन इज वेरी वेरी स्मॉल. We will load the DNA, जो सेल के अंदर डालना है, टारगेट सेल के अंदर डीएनए उसको लोड करते हैं जीन गन में और उसको फायर कर दिया जाता है सेल पर. एग्जैक्टली टारगेट लोकेशन पर जाकर वो जो है इंटीग्रेट हो जाता है. तो एक अच्छी अप्रोच है, यूज भी ज्यादा की जाती है. ठीक है, बहुत कम लिमिटेशन है इसके अंदर डीएनए डिलीवरी के दौरान. सो इट इज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल एज द वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एंड इन सम केसेस इट इज इवन गुड एज कंपेयर टू द वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, क्योंकि उससे कम टाइम लगता है. सो जनरली इसका कंसेप्ट हम समझते हैं. ये एक स्ट्रक्चर है जीन गन का. जीन गन में एक प्रेशर ट्यूब होती है जिसमें हाई प्रेशर से
गैस या कुछ भी जो इसको एनर्जी की तरह काम करेगा, जनरली गैस प्रेशर ट्यूब होती है। ट्यूब के नीचे यहाँ रप्चर डिस्क होती है, दिस ब्लू इज रप्चर डिस्क। रप्चर डिस्क के बाद दिस ब्राउन प्लेट इज मैक्रो कैरियर। ये मैक्रो कैरियर है जो प्रेशर डालेगा माइक्रो कैरियर पर। माइक्रो कैरियर क्या होता है ये समझेंगे। माइक्रो कैरियर होता है हमारा डीएनए। डीएनए जिसको हमें इंसर्ट कराना है टारगेट सेल्स के अंदर। ये टारगेट सेल्स है, ये प्लांट सेल है जिनके अंदर डीएनए को डालना है, टारगेट प्लांट सेल्स। अब डीएनए पर किसी तरह का प्रेशर अप्लाई होगा तो डीएनए डैमेज हो सकता है, इसलिए डीएनए कोटेड होता है टंगस्टन से या गोल्ड से। गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल से कोटेड डीएनए को माइक्रो कैरियर कहते हैं, अकेले डीएनए को नहीं। टारगेट डीएनए विच इज कोटेड विद द टंगस्टन और द गोल्ड, दोनों ही महंगे मटेरियल हैं, उनसे इनको कोट किया जाता है। जनरली जो कोटिंग होती है वो 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर होती है। इतनी थिकनेस होती है, इतना साइज होता है कोटिंग का। तो फॉरेन डीएनए व्हिच इज कोटेड विद द हाई वेलोसिटी गोल्ड और द टंगस्टन पार्टिकल्स इज रेफर्ड टू एज माइक्रो कैरियर। माइक्रो कैरियर होल्ड होता है किस पर, मैक्रो कैरियर पर। यहाँ बीच में एक स्टॉपिंग स्क्रीन होती है, इसको आप एक छलनी के जैसा मैकेनिज्म समझ सकते हैं, जो हम चाय के टाइम पर छलनी यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए कोई भी जो प्लेट हम यूज करते हैं, स्टॉपिंग स्क्रीन। सो हाउ द जीन गन बेसिकली ऑपरेट दैट आई विल डिस्कस नाउ। इसके नाम है बायोब्लास्टर, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, बायोलिस्टिक्स। माइक्रो कैरियर बेसिकली क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल है जो गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल से कोटेड है। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट हाउ द पार्टिकल गन और द जीन गन और द माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इसके और भी नाम है बायोब्लास्टर, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। Most important names are particle bombardment, ballistics and gene gun. That's why I have written these three names. So देखते हैं मैकेनिज्म कैसे ये काम करेगा, कैसे फॉरेन जीन को ये ट्रांसफर करता है। तो गैस प्रेशर के थ्रू प्रेशर आता है, यानी एनर्जी आती है। वो एनर्जी रप्चर डिस्क को रप्चर कर देगी। जब रप्चर डिस्क इस तरह से थी, ये रप्चर हो जाएगी, कुछ तरह से टूट जाएगी, तो वो सारा प्रेशर आकर डायरेक्टली मैक्रो कैरियर पर लगेगा। ठीक है, मैक्रो कैरियर अपना सारा प्रेशर, अपना टॉर्क माइक्रो कैरियर्स पर ट्रांसमिट कर देगा। माइक्रो कैरियर जो कि डीएनए है लेकिन कोटेड है, उन पर जैसे ही धक्का लगेगा, कौन सा धक्का, वो प्रेशर जो गैस ट्यूब से या रप्चर डिस्क से आया था। ठीक है, रप्चर डिस्क कंसंट्रेट कर देती है सारे प्रेशर को। रप्चर डिस्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जितना भी सारा प्रेशर था उसको कंसंट्रेट करके एक जगह पर, यानी मैक्सिमम प्रेशर को माइक्रो कैरियर पर भेजती है, मैक्रो कैरियर पर। मैक्रो कैरियर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स वो प्रेशर को आगे माइक्रो कैरियर को ट्रांसफर करते हैं। मैक्रो कैरियर इसलिए लगा दिया था क्योंकि जो कोटेड पार्टिकल्स हैं उनको भी एकदम से जो है बहुत सारा प्रेशर ना फील हो, तो उसका भी डाइवर्जन करने के लिए मैक्रो कैरियर है। और अल्टीमेटली वो सारा प्रेशर पहुंचता है माइक्रो कैरियर्स पर, यानी डीएनए पर जो कोटेड है। तो कोटेड होने की वजह से डीएनए डायरेक्ट डैमेज नहीं होता। अब होता क्या है कि वो प्रेशर से फाइनली ये सारी मैक्रो कैरियर और माइक्रो कैरियर आकर स्टॉपिंग स्क्रीन से टकराते हैं। स्टॉपिंग स्क्रीन में छोटे छोटे पोर हैं जो इतने छोटे हैं जिनसे केवल डीएनए नीचे जा सकता है। तो जैसे ही एक गन की तरह हमने ट्रिगर दबाया, गैस प्रेशर से प्रेशर रिलीज हुआ, वो टूटा, उसने रप्चर डिस्क को रप्चर किया, दैट विल ट्रांसमिट और कंसंट्रेट द प्रेशर ऑन द मैक्रो कैरियर। मैक्रो कैरियर धकेल देगा माइक्रो कैरियर डीएनए को नीचे, तो वो डीएनए बहुत तेजी से, स्पीड से, क्योंकि मैक्रो कैरियर प्लेट नहीं जा सकेगी स्टॉपिंग स्क्रीन से नीचे, तो स्टॉपिंग स्क्रीन से नीचे सिर्फ और सिर्फ हमारा डीएनए जाएगा। ठीक है, और वो डीएनए जाकर जो कोटिंग थी वो भी हट जाएगी स्टॉपिंग स्क्रीन में, तुरंत एम्बेड हो जाएगा प्लांट सेल्स के अंदर टारगेट पोजीशन पर। तो ये एक मैनेज्ड एक जो है प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके थ्रू केवल डीएनए ही टारगेट सेल में जाकर सीधा लोड हो जाता है। तो वो प्रेशर, वो गन लाइक मैकेनिज्म कहां से जनरेट हुआ, वो जनरेट हुआ गैस प्रेशर पाइप से। रप्चर डिस्क ने कंसंट्रेट किया, मैक्रो कैरियर ने नीचे धकेला, और स्टॉपिंग स्क्रीन के थ्रू ओनली डीएनए जाकर टारगेट सेल में एम्बेड हो गए। This is the mechanism of the particle bombardment. It is a good physical mechanism because there is no biological limitation to the actual gene or the DNA delivery in this method. There are no limitation, and it is also the genotype independent. Genotype से भी independent. Injection is the another physical approach for the direct gene transfer. डीएनए को या जीन को डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन को भी यूज किया जा सकता है। एनिमल्स में ज्यादा यूज की जाती है, प्लांट्स में लिमिटेड यूज है, बिकॉज प्लांट्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल को पेनिट्रेट कर देता है इंजेक्शन, या टोनोप्लास्ट को रप्चर कर देता है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर कन्वीनियंट नहीं है, कम यूज किया जाता है। एनिमल्स के अंदर ज्यादा यूज की जाती है अप्रोच। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ द इंजेक्शन
in which we have loaded the DNA and that DNA will be transferred into a cell. तो बहुत एक बेसिक सा मैकेनिज्म है, ये टारगेट सेल है. ठीक है, इसको होल्ड कर रखने के लिए, क्योंकि जब इसमें इंजेक्शन लगाया जाएगा तो सेल का साइज तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, द सेल इज वेरी वेरी स्मॉल. तो एक सक्शन पाइप होता है, ऑयल सक्शन पाइप होते हैं जनरली इस तरह से, जो इसको होल्ड रखते हैं, एक पोजीशन पर रखेंगे, सक्शन प्रेशर या हाइड्रोलिक्स पर काम करते हैं. बट इसमें वाटर नहीं, ऑयल भरा हुआ है, ऑयल सक्शन पाइप बोलते हैं. ऑयल सक्शन पाइप का काम है कि इसको होल्ड करके रखना है. प्लांट सेल है तो प्रोटोप्लास्ट यूज किया जाता है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर इंजेक्शन पेनिट्रेट नहीं करता, तो सॉफ्ट पार्ट, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, जनरली प्रोटोप्लास्ट किया जाता है. ठीक है, न्यूक्लियस होगा, स्लाइटली एम्बेडेड हो जाता है, कॉर्नर में ही न्यूक्लियस, और वैक्यूल होता है लार्ज. इंजेक्शन लगाया जाता है. अब इंजेक्शन का जो पिपेट होगा, माइक्रो पिपेट, उसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो बिल्कुल टिप से ऐसे एक टिप होगी, बहुत ही पॉइंटेड टिप. ये मानो वो इंजेक्शन है, ये जिसकी निडल है, इसको कहते हैं माइक्रो पिपेट. माइक्रो पिपेट का साइज है 0.5 to 10 पिकोमीटर. ठीक है, बहुत बारीक साइज की जिसकी टिप हो, ऐसा इंजेक्शन लिया जाता है. हमारा जो हम वैक्सीन में या किसी भी तरह से कोई इंजेक्शन यूज करते हैं, उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज अ सेल इज वेरी वेरी स्मॉल. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज द डीएनए. सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, वो तो और भी स्मॉल है. तो इसके अंदर लोड किया हुआ है हमने टारगेट जीन. दिस टारगेट जीन इज इंसर्टेड बाय इंजेक्शन इनटू द प्लांट सेल. एनिमल सेल में सक्सेस है, प्लांट सेल के अंदर लिमिटेड यूज है, क्योंकि ये वैक्यूल को या टोनोप्लास्ट को, मेम्ब्रेन जो होती है वैक्यूल की, उसको डैमेज कर सकता है. सो लाइक अ सिमिलर इंजेक्शन मैकेनिज्म, इंजेक्शन कंटेनिंग द टारगेट जीन insert or penetrate the cell membrane, and the DNA will be inserted directly into the cell. This is the micro injection. Main concern in this, you have to remember the oil section pipes as well as the targeted DNA, which is loaded inside the micro injection. So due to their very very small size, they are called micro injection. So liposome mediated gene transfer, which is also called encapsulation, or the liposome encapsulation, is the another physiochemical technique. It is having chemical properties as well as the physical properties also. So liposome mediated gene transfer में basically liposome mediated है तो liposome यूज किए जाते हैं. Liposome क्या होते हैं? लिपिड पार्टिकल्स होते हैं. वही फॉस्फोलिपिड बायर लेयर की तरह फॉस्फोलिपिड नेचर है, कंपाउंड लिपिड्स है फॉस्फोलिपिड्स, एंड अ होलो चैम्बर, और इनके अंदर एक होलो चैम्बर होता है, बाई मेम्ब्रेन होगा. सपोज दिस इज अ लिपोसोम. अब क्योंकि लिपिड है तो वही आपका ग्लिसरॉल हेड है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल हेड है, फैटी एसिड है, माइकेली शेप लिया हुआ है यहाँ पर इसने. यह है एक मॉलिक्यूल लिपोसोम. होलो चैम्बर, इस होलो चैम्बर में क्या किया जाता है? डीएनए को लोड कर लिया जाता है. तो डीएनए जो होता है वो कोटेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड हो चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड हो, मानो डबल स्ट्रैंड ले रहे हैं, ये हमारे टारगेट डीएनए है, टारगेट जीन है. ठीक है, डिजायर्ड जीन. इनको कोट कर दिया गया लिपिड से. तो जब लिपिड पार्टिकल से डीएनए को कोट कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है, डीएनए पार्टिकल्स कोटेड विद होलो लिपिड पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड लिपोसोम. तो लिपोसोम की सहायता से जब जीन ट्रांसफर कराया जाता है तो इसको हम कहते हैं लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर. एनिमल्स में ज्यादा यूज की जाती है, प्लांट्स में लिमिटेड है. बट प्लांट्स में जनरली होता क्या है कि प्लांट सेल एंड नॉट द प्लांट सेल एग्जैक्टली द प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि सेल वॉल को हटा दिया जाता है. वही बात है, सेल वॉल लिपोसोम के लिए भी इम्परमिएबल है, तो रिजिड पार्ट को हटा दिया जाता है, डायरेक्टली ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन जैसे ही लिपोसोम को रिसीव करती है जिसके अंदर डीएनए, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइपेज एंजाइम की तरह काम करती है. लाइपेज जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन करती है, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस करके एनगल्फ कर लेती है अपने अंदर लिपोसोम को. लेकिन पूरे लिपोसोम को नहीं, लिपिड पार्टिकल्स को तो तोड़ दिया है. तो लिपिड तोड़ने के बाद जो डीएनए बचा उस डीएनए को अपने अंदर ले लेती है, अंदर इंसर्ट हो जाता है. तो इस तरह से लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, कि लिपोसोम के अंदर पैक करके डीएनए को, हाई नंबर में प्लाज्मिड्स आ सकते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड्स यानी कि वेक्टर भी आ सकते हैं एक तरह से, या डीएनए पार्टिकल्स आ सकते हैं, या डायरेक्टली डीएनए जो इंसर्ट कराना चाहते हो वो भी आ सकते हैं सोलो चैम्बर में. और फिर स्टिमुलेट कर दिया जाता है लिपोसोम्स को थ्रू द प्रोटोप्लास्ट. क्यों? प्रोटोप्लास्ट का जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग, ये लाइपेज एक्टिविटी शो करता है और लिपोसोम का ब्रेक डाउन करके टारगेट जीन को या जीन को अपने अंदर ले लेता है. दिस इज द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर बाय लिपोसोम. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स के अंदर टोबैको में, कैरेट में, कुछ इस तरह के प्लांट्स में ये यूज किया जाता है, मेनली टोबैको में.
carrot में, etc. So this is the another physiochemical approach. So these are 4 physical approaches used in the direct gene transfer. Another is the chemical mediated gene transfer, that is the PAG mediated gene transfer. So the another gene transfer method or the direct gene transfer method is the polyethylene glycol mediated gene transfer. PAG, that is poly, PE, ethylene and glycol. So abbreviation is the PAG. PAG is a chemical. That is why this is a chemical direct gene transfer method. Previously, what we have discussed are the physical gene transfer method, which uses any kind of the process or the techniques. In this, the chemical is used to transfer the gene directly. So it is a kind of electroporation mechanism. In the electroporation, we use the electric current, but here we are using the chemical, that is the PEG. The chemical polyethylene glycol in presence of the calcium ions, some another chemical like mannitol, calcium nitrate solution, then the same job that was done by the electric currents or the electric pulses in the electroporation. तो यहाँ भी वही सिमिलर वर्क होता है कि किसी सॉल्यूशन में जहां टारगेट सेल को लिया हुआ है, जिसके अंदर डीएनए को डालना है. ओके, दिस इज द टारगेट सेल, और बाहर डीएनए के सॉल्यूशन लिए हुए हैं, बहुत सारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड ट्रीट करेंगे. कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए सो दैट प्रोबेबिलिटीज आर मैक्सिमम. इस सॉल्यूशन में केमिकल डाला हुआ है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, यहाँ पर केमिकल्स डाले हुए हैं जैसे पैग और उसके साथ कैल्शियम आयंस, मैनिटोल, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा. तो इस सॉल्यूशन में वही इलेक्ट्रोपोरेशन वाला काम होता है क्या कि माइक्रोपोर्स क्रिएट करते हैं. ये सारे सॉल्यूशन 15 टू 20 मिनट्स के बाद जब इंक्यूबेट कर देंगे हम डीएनए को और इस सॉल्यूशन को, पैग सॉल्यूशन को, तो ये पोर्स क्रिएट कर देता है सेल मेम्ब्रेन में ट्रांजिएंट कुछ टाइम के लिए. जीन जो है या टारगेट जीन इसके अंदर से इंसर्ट हो जाता है सेल के अंदर. उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन ठीक हो जाएगी और प्रोटोप्लास्ट भी रीजनरेट हो जाएगा. देखिए यहाँ जो टारगेट सेल ली है वो प्रोटोप्लास्ट ही ली है, क्योंकि अगर प्रॉपर सेल वॉल लेंगे तो जो सेल वॉल है वो पैग हो या कोई भी केमिकल हो वो अंदर नहीं आने देगी डीएनए को. तो यहाँ भी प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है. एक बार जब अंदर आ जाते हैं तो प्रोटोप्लास्ट रीजनरेट करके प्लांट सेल वॉल ही बना लेता है. तो यहाँ पर भी प्रोटोप्लास्ट लिया गया है और जो काम इलेक्ट्रिक पल्सेस कर रहे थे वो यहाँ पर केमिकल कर रहा है, दैट इज द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. This approach is mainly used in the plants, although it is also used in the animals. But in the plants, this approach is very, very common. So among all the direct gene transfer methods, the gene are very common and they are very easy to handle, as well as they are having no limitations or no biological limitations to the actual DNA delivery. So these are some direct gene transfer methods, irrespective of the vector, because there are no vectors required in this kind of the approaches. They are very simple, easy, and easy to handle, although have limitations like they are not target specific, as well as they are having no good results because they are not natural. So these are the direct gene transfer methods. In some another videos, we will also discuss the direct gene transfer method in the animals. Although in the botany papers or the plant biotech, the approaches for the gene transfer in animals is not important. And still, the maximum approaches are common. All of the 5 approaches that we have studied are also included in the animals, along with some special mechanisms like transfection and the transduction, which are only specific for the animals. So have a good time. Have a nice day.